Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. ट्रैवल डायरीज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है विद मी आरजे सलील और मेरे साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर टर्न ट्रैवल गुरु अनन्य शुक्ला. Hello Salil, love to be back. एंड लव टू हियर योर स्टोरीज ऑफ स्पेशली दिस न्यू प्लेस. ऑलवेज मेरे को भी एक्साइटमेंट रहती है हम कहाँ जाने वाले हैं. यहाँ पे ये मेरे लिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी बड़ा जीतते थे जब भी वो इलेक्शन के लिए जाते थे. वायनाड. I think anyone up north knows the place only because of Rahul Gandhi. But जो केरला से नहीं है, I think उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, so that they find out how beautiful Wayanad is. लोग बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में. यू नो इट्स नॉट लाइक जैसे कोडाई कनाल है, जैसे ऊटी है, जो बड़े नोन प्लेसेस हैं. सो टेल अस व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट. और पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रैवलर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों जाए? So I think anyone in their 20s and 30s would absolutely love this place because if you have a synonym for this place, it's adventure. अच्छा. If you love water, if you love waterfalls, if you love trekking through the jungle on an offbeat destination जहाँ पे सिर्फ आप हो, Wayanad is the place for you. तो why is it not so famous? मतलब ऐसा उनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया? उनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया है. वहाँ की प्रॉपर्टीज भी जो जंगल के अंदर हैं, they don't publicize that much because of lack of awareness of social media maybe. But very few people know about the place. So we as a travel community are trying to promote it जितना हो सके to help the local vendors as well. And when we go there, we stay inside the jungle for 2 days. Wow. Along with staying in the city as well. So you see a lot of wildlife? You do see a lot of wildlife, and उसके just बाद is a tiger reserve as well, which is quite famous. Wow. Yeah. So would you recommend this little more than the more popular North Indian destinations जैसे Ranthambore, सरिस्का वगैरह? यहाँ पे काजीरंगा also नॉर्थ ईस्ट में अपने वन हॉर्न राइनोस के लिए बड़ा फेमस था. यहाँ पे would you recommend this as younger children to come across? अगर जैसे आपने टाइगर रिजर्व की बात की और जंगल ट्रिप की बात की, उसी के लिए सिर्फ? I think for children, obviously, it's very important to stay close to nature at an early age because it teaches you a lot. And in Wayanad, there's a place called 900 Candy, जिसके अंदर बहुत सारी जंगल प्रॉपर्टीज हैं where it's only you at that property. There are not multiple properties next to each other. तो वो commercial competition नहीं है. So just imagine your stay being in the middle of the jungle where you have food, a cafe, you have live music at night under the trees, stars, everything, and just exclusively for you. So imagine being so close to nature and all your hikes, all your forest treks are through the property itself. So you don't have to travel anywhere else. Wow. You cannot get your own car to this place. You come to a point, they send you jeeps which take you to the property. And उसके बाद आप सिर्फ जंगल में रह रहे होते हो 2 दिन. सब कुछ आपके लिए वहीं पे होता है. And your Wi-Fi works only inside the cafe, which is the best part according to me. Because जब आप उसके बाहर नेचर एक्सप्लोर कर रहे होते हो, you're not constantly on your phone. Okay. And it's a place where our travelers have absolutely enjoyed because of the amount of peace they get. And for our generation, I think that peace is very, very important. I think ये बहुत ही incredible है. What a way to go to a place like this. लेकिन obviously बड़े सवाल आएंगे. क्या सुविधाएं वैसी हैं जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 5-star रिजॉर्ट में, या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है? Right next to it is a place called Vaitri, which is inside Wayanad only. जी. And वहाँ पे आपके सारे 4-star, 5-star hotels हैं. So if you want, would you recommend the jungle property or that? I would recommend a mix of both. Okay. Plan it for 4-5 days, wherein 2 days you're staying in the jungle property so that you experience nature. Then 2 days you're staying at a decent property, 4-star, which is right very close to it. And वहाँ से आप बाकी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे कि जिप लाइनिंग, which is very famous in Wayanad. You can explore the tea plantation, Suchipara waterfalls, multiple things to do over the course of 4-5 days. So I would recommend staying at both the places. Stay in the jungle for 2 days, stay at the property for 2 days so that you have a mix of both leisure and adventure. Weather, obviously, I think June, July types will be very rainy. June, July is very rainy. I would recommend going slightly before that. May is probably the ideal time to go for it because it starts raining a little bit. दिन में भी थोड़ी बहुत बारिश रहती है, बादल रहते हैं, तो वेदर परफेक्ट रहता है. राइट नाउ इट्स वेरी हॉट ओवर देयर. आई रिसेंटली वेंट लास्ट वीक ऑल्सो. बट वेदर इन जनरल जून जुलाई, हम लास्ट टाइम जून में गए थे एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश थी, बट इट इवन मेक्स इट प्रिटियर कि बारिश है, ग्रीनरी और बढ़ जाती है, आपके ट्रैक्स और वाटरफॉल्स में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है. So for as an adventure lover, I think monsoon is also a great time. Fully safe? Fully safe. The treks and everything are fully safe. वहाँ के local guides आपको ले जाते हैं. एंड हम एक बार ट्रैक में एक जगह थोड़ा डिटूर हो गए थे बिकॉज ऑफ वाटरफॉल एंड रेन बहुत ज्यादा हो गई थी, बट लोकल गाइड्स इतने इक्विप्ड थे, उन्होंने हमारे लिए एक नया रास्ता बना दिया था जंगल के थ्रू. सो या द लोकल्स ओवर दे आर सुपर हेल्पफुल, वेरी नाइस पीपल एंड दे लव वायनाड. सो वो चाहते हैं कि कोई भी वहां पर आए तो उस जगह को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करे. इट्स वेरी सेफ. द ट्रैक्स आर आल्सो वेरी सेफ एंड बिगनर फ्रेंडली. Trip can be ruined with bad food. Correct. I think food is a very important factor when you're traveling because you want authentic food as well and you also want the food to be safe.
तो वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में आपको थाली बहुत ही अच्छी मिलती है. दे हैव रेस्टोरेंट्स विच विल गिव यू वेरी गुड नॉर्थ इंडियन फूड. दे हैव लोकल रेस्टोरेंट्स विच विल गिव यू थाली, एंड थाली वेज भी बहुत अच्छी है. मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, एंड हम लोगों को लास्ट डे वहाँ पे एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जो कि फेमस है लोकल फूड के लिए. तो सब लोग बैठ के थाली ऐसी खाते कोई हैं. डिश जो उसके लिए बड़ी जानी जाती है? आई थिंक वहाँ पे दाल राइस करी जो नॉर्मल मिलता है लीफ पे फॉर वेजिटेरियंस. नॉन वेजिटेरियंस के लिए वहाँ की फिश बहुत ज्यादा फेमस है, एंड चिकन करी एज वेल. तो हम वहाँ पे लास्ट डे सबको ले जाते हैं. आप इस थाली का प्राइस सुन के आई थिंक थोड़े शौक में आ जाओगे. इट्स ओनली 120 रुपीज. What? एंड दैट इज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ राइस एंड दाल. तो लास्ट डे हम हमेशा ट्रिपर्स को ले जाते हैं. बहुत ज्यादा हाइजीनिक, बहुत ज्यादा टेस्टी फूड होता है. Do you think a lot of these travel portals should थोड़ा सा और बढ़ावा देना चाहिए वायनाड को? सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ लिटिल डाइसी कि आप कोई भी ऑफ बीट जगह को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज कर दो तो वहाँ पे क्राउड बहुत बढ़ जाता है. बट आई वुड रियली रिकमेंड पीपल टू टॉक अबाउट दिस मोर, बिकॉज बहुत कम जगह इंडिया में ऐसे मिलती हैं जहाँ पे आपको सुकून और शांति मिल सके. अगर आपको किसी जगह पे वो मिल रही है तो पीपल शुड नो कि वो वहाँ जा सकते हैं. और बहुत कम जगह ऐसी बची हुई हैं. डूज एंड डोंट्स और प्राइसिंग जैसे इन्होंने बात की, और कैसे आप पहुंच सकते हैं वायनाड. फर्स्ट, हाउ डू वी गेट देयर? वी वुड लव टू नो दैट. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कनेक्टिविटी के बारे में लोगों को पता नहीं है. इफ यू आर एनीवेयर क्लोज टू बैंगलोर और इफ यू कैन फ्लाई इन टू बैंगलोर, इट्स ओनली 6 hours फ्रॉम बैंगलोर. Okay. तो आप वहां से बस ले सकते हो या आप ड्राइव कर सकते हो. Right. अगर आप बैंगलोर से नहीं हो, किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री से हो, यू वांट टू डायरेक्टली फ्लाई इन, आप कन्नूर एयरपोर्ट पे आ सकते हो, विच इज Okay. ओनली 3 hours अवे फ्रॉम वायनाड. Okay. एंड वहां से डायरेक्ट टैक्सीज एंड बसेस चलती हैं फॉर वायनाड. I think एंड मोस्ट beautiful. पीपल वुडंट नो आई एम कोझिकोड, जो कि एकदम बगल में है वायनाड के. सो कोझिकोड लोगों को पता है, उसी के 10-15 किलोमीटर की दूरी पे वायनाड है. वंडरफुल. सो इट्स वेरी इजी टू गो देयर. यू सेड कि वहां पे ट्रैवल आप ज्यादा कर नहीं सकते हो, तो गाड़ी आपको बुक ही करनी पड़ेगी. कन्नूर एयरपोर्ट से आप And गाड़ी बुक वो कर सकते आपके हो. 4-5 दिन के लिए वही गाड़ी. करेक्ट, आपको एक गाड़ी लेके चलनी पड़ेगी. एंड आप वायनाड में भी ये चीज ले सकते हो. वहाँ पे ऑटोज चलते हैं बहुत ज्यादा, Oh, wow. लोकल टैक्सीज नहीं चलती हैं. Right. एंड कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशन जैसे कि वाटरफॉल, जंगल्स में आपकी गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो वो लोग जीप्स प्रोवाइड करते हैं 4x4, जो कि आपको पिकअप और ड्रॉप वहीं पे करते हैं. तो इट्स वेरी कन्वीनियंट. द अमाउंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ऑफ दिस इज अबंडेंस वहाँ पे, इन अबंडेंस. लोग ऑलवेज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब लोकल्स के साथ पूरी तरह भरोसा करेंगे, विल वी बी चीटेड. तो ए, व्हाट्स द प्राइसिंग लाइक, एंड बी, डू वी बार्गेन फॉर थिंग्स ओवर देयर? So you cannot bargain for jeeps and public transport because much like throughout India, ये fixed prices पे prices. चलते हैं. हाँ. But for local stays and all, you can definitely bargain. अगर आप Y3 में रह रहे हो, जो कि वायनाड का आउटर डिस्ट्रिक्ट है, जंगल के बाहर, वहाँ पे आपको सारे टाइप की पूल प्रॉपर्टीज, रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3500 to 4000 पर रूम. और ज्यादा आपको फैंसी चाहिए तो आपको 5-6 हजार पर रूम में मिल जाएगा. Jungle properties will be around 1500 per person for a night, which includes breakfast as well, and you can include dinner. वो थोड़े extra cost पे होगा, but that also includes all your trekking activities, all the experiences that the locals will provide, the guides as well, which is why I would recommend that to everyone, because at a very low price you're getting to 1500 experience there, everything, wow. which includes waterfall treks, guided treks through the jungle, stay. So why would you recommend winter time to go? So Kerala is not really cold in winters as well. वहाँ का सेम ही रहता है. सेम ही रहता है वो. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीजन थ्रू आउट. मतलब पूरे साल में आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पे. बहुत ज्यादा बारिश अवॉइड करो एंड थोड़ी सी गर्मी अवॉइड कर सकते हो आप. बाकी कभी भी जा सकते हो आप वहाँ पे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू गो. तो दैट्स वन ऑफ द डोंट्स कि आप बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी अवॉइड कर सकते हो. जैसे ही वाज मेंशनिंग कि अप्रैल इज नॉट अ मंथ टू वांट टू गो. बट एनी वन पर्टिकुलर डोंट दैट यू हैव इन माइंड एंड वन पर्टिकुलर डू दैट यू हैव इन माइंड? पर्टिकुलर डोंट विल बी कि जब भी आप वहाँ पे कोई भी ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट ट्राई कर रहे हो या कोई भी जंगल में आप जा रहे हो, आप अकेले मत जाओ. लोकल गाइड्स आपके साथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ ए परमिट्स, बी वहाँ पे आप कभी भी फंस सकते हो, बिकॉज यूर इन अ जंगल, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन. कभी भी पानी का फ्लो बढ़ सकता है वाटरफॉल्स में अगर आप मानसून्स के पास जा रहे हो. कभी भी बहुत तेज बारिश हो सकती है. सो यू नीड लोकल्स हु कैन हेल्प यू थ्रू आउट. डूज में डेफिनेटली यही है कि आप सारे ऑफ बीट चीजें भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप जब सिर्फ रिजॉर्ट में जाके रहोगे, वहाँ की प्रॉपर्टी विल प्रोवाइड यू फ्यू फैसिलिटीज, बट ऑफ बीट चीजें आप नहीं कर पाओगे वहाँ से, क्योंकि आपको डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स चाहिए होंगे. So you can always reach out to people, travel agents also like us, who can help you with all this information. Love it. Wayanad is on my to-do list for sure. ये वीडियो देखने के लिए रेडियो सिटी मुंबई पर जरूर जाएं, and Firgun Travels is where Ananya provides such kind of curated experiences. Thank you, brother. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ